Sorting and filtering are like most commonly and frequently used features we have it in Excel. Sorting allows you to change the order of your data, right? And filter allows you to keep the relevant information visible. So for this, what you have to do, you come somewhere within the data. You guys don't have to select the data, but you can avoid selecting the data. Be somewhere within the data range and then simply come to data ribbon tab, and there you have got sort and filter option. And what you can do, since we are talking about sorting feature here, so simply click on sort. The moment you click on sort, a dialog box has opened and current data region has been selected. The headers are not selected here, but it is actually a part of the sorting feature. Let me just show you here. Do you see this my data headers? Sometime you guys must have experienced that here instead of seeing the headings, you end up seeing column A, column B, column C, column D likewise. तो वो इसलिए होता है कि ये जो my data has header यानी कि जो आपका जो सिलेक्शन है, राइट, ये जो फीचर है आपके पहली रो को हेडर रो कंसीडर नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में जब वो ऑप्शन अनचेक होगा तब यहाँ पे आप कॉलम A, B, C, D, E, F, G देखेंगे। So if you ever experience that you're seeing column A, B, C, D, E, F, G, etc., simply come here and make sure this option is checked. When this option is checked, immediately your first row of the current data region will be treated as the header row, and then you will be able to actually use them. Now, the data that I have got, okay, it's a dummy data, right, belongs to the media industry. Here we have got the market, UP 1 million, Gujarat 1 million, Ahmedabad, Maharashtra 1 million plus, and then here we have got the cities. वो headings हो गए, then उसके बाद हमारे पास यहाँ बता रखा है कि नॉन मेट्रो सिटीज का पार्ट है, मेट्रो सिटीज का. Then whether it is a Hindi speaking market or South market. After that we have got quantitative information. यहाँ पे है market weight है 8 मेट्रोस का, मार्केट वेट साउथ मार्केट का है, HSM हिंदी स्पीकिंग मार्केट का है, पैन इंडिया का है या विद इन मार्केट है, पूरे नेटवर्क लेवल पे, पूरे पैन इंडिया लेवल पे उसका क्या शेयर है. तो यहाँ पे सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, बट आई कैन सी दैट द डेटा इज नॉट कमिंग इन अ प्रॉपर ऑर्डर. लाइक यूपी इज कमिंग बिफोर अहमदाबाद, Gujarat is coming before Maharashtra. So this kind of information that you see, like, is not coming in a proper order. So अगर ऐसा आप कुछ देख पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके सॉर्ट को ओपन करेंगे एंड देन लेट्स सिलेक्ट ओनली मार्केट. यहाँ पे कॉलम्स सिलेक्ट करने, फिर उसके बाद सॉर्ट ऑन. आप वैल्यूज के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हैं या फिर सेल कलर्स के बेसिस पे या फॉन्ट कलर के बेसिस पे, और यू वुड लाइक टू सॉर्ट ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिस. जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो यहाँ पे चूज करेंगे. हम इस केस में सेल वैल्यूज पे बेसिस पे जाएंगे एंड उसके बाद ऑर्डर क्या है, ऑर्डर A to Z मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग. ठीक है, वो आपने चूज किया, या फिर Z to A, या फिर आप खुद का ऑर्डर भी बना सकते हैं. आप बोलते हैं भी पहले B आएगा, फिर D आएगा, फिर C आएगा, फिर P आएगा, फिर A आएगा. I am going with A to Z. That means ascending to descending order. The moment I click on OK, you notice here that my data has been sorted. The market which are starting with letter A are coming on top, and then the market starting with like B, C, D, right, are coming. So this is how basically it works here. Now I notice that after market, right, here heading जो है वो अभी information scattered है, मतलब पूरी cluttered information आ रही है. मेरे को अहमदाबाद के अंदर I can see पहले इनकेबल, फिर GTPL, फिर इनकेबल, फिर GTPL, फिर इनकेबल, फिर GTPL. If you would like to perform, if you would like to see them grouped together, this is called multi-level sorting. तो आपको क्या करना है, उसी समय अब दोबारा हम आके यहाँ पे ऐड लेवल कर सकते हैं. मार्केट के बाद हम बोलते हैं हेडेड. हेडेड पे आके आप यहाँ पे सेल वैल्यूज एंड A to Z करेंगे तो ओके करते ही अब वो क्या करेगा, अहमदाबाद के अंदर जाएगा, जो हेडेड वाला कॉलम है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेगा. सिमिलरली इफ यू डू नॉट वांट टू सॉर्ट बेसिस ऑन वैल्यूज बट यू वुड लाइक टू सॉर्ट बेसिस ऑन कलर्स, तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे मैंने अंडू कर दिया एक्शन को, सॉर्ट पे आता हूं मैं यहाँ पे और यहाँ पे किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए. मैंने कलर्स कर रखी है रोज को, ठीक है. तो सेल वैल्यूज की जगह आप सेल कलर सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे ही सेल कलर पे जाते हैं तो उस सेल में जो भी, उस कॉलम के अंदर जो भी कलर अवेलेबल है वो सारे कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे. लेट्स से आई वुड लाइक टू सी ऑल द ब्लू कलर रोज ऑन टॉप. The moment I select, and here you can decide whether you want to see them on top or you want to see them on bottom. On top, okay, and there we go. Let me now show you how filter works. Filter can be applied either by coming here or by using the shortcut Control Shift L. यहाँ पे आपको क्या करना है, Alt and then उसके बाद A and then filter के लिए आपको क्या प्रेस करना है, T. So T प्रेस करते फिल्टर यहाँ पे लग जाएगा. ये आपका हॉट की. So
filter, either you can just simply come anywhere within your data and press Control Shift L, or you can simply go to data and click on filter. The moment you press filter gets applied to your headers. So मुझे क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ पे आऊंगा उस पर्टिकुलर फील्ड में, एंड या तो मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक यहाँ से कर सकता हूँ, या फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में जाके ऑल्ट डाउन एरो यूज कर सकता हूँ शॉर्टकट। तो आप यहाँ पे आके ऑल्ट डाउन एरो करके लिस्ट को एक्सपैंड कर सकते हैं, देन यू कैन यूज द नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज को आप यूज कर सकते हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू यू कैन गो अप एंड डाउन, और अगर आपको किसी को चेक अनचेक या सिलेक्ट अनसिलेक्ट करना है तो स्पेस बार का आप यूज कर सकते हैं। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ओनली मेट्रो सिटीज, एंड वंस आई एम डन आई हिट एंटर की। द मोमेंट आई हिट एंटर की, it is actually going to filter out the selected markets. अब इन selected markets में से सपोज कीजिए मुझे कुछ specific headings को चूज करना है, तो once the markets are filtered, I can then come to heading column and can open the filter. Let's say मुझे in cable को सिर्फ filter out करना है। अब यहाँ पे हो सकता है in cable different तरीके से लिखा हो, right? But start हो रहा in space C से, तो instead of going and selecting one by one, मैं क्या कर सकता हूं, आई एन स्पेस सी यहां पे जैसी टाइप करता हूं, आई कैन सी ऑल फील्ड्स, all values which are having in space c in it, right, are getting highlighted, and the moment I click on OK, it's going to filter out only the in cable. To clear the filter, you can simply come here and just click on a button, and then the filter will be cleared. Similarly, if you come onto a column containing numbers, वहां पे आपके पास नंबर फिल्टर होता है, एंड टेक्स्ट कॉलम पे आते हैं तो वहां पे आपके पास टेक्स्ट फिल्टर होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ लास्ट कॉलम पे, लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ वही वैल्यूज को फिल्टर आउट करना है जो 45 से 50% के बीच में फॉल हो रही है। ओके करते ही सिर्फ वही वैल्यूज मेरी यहाँ पे फिल्टर आउट हो। लेट मी क्लियर इट। आई शोड यू जस्ट नाउ दैट I filtered out few markets, then after that I filtered out headings, few headings from the filtered markets. Okay, now let's suppose I had to select the data and have to paste it somewhere else. It's going to be a little lengthy task. So और अगर मेरे को 3-4 कॉलम्स में से फिल्टर लगा के उसके बाद जाके मुझे बेसिकली कहीं कॉपी पेस्ट करना है, तो वो टास्क थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और अगर वैल्यूज उसमें या फिल्टर मुझे चेंज करना है, ऐड करना है, तो दोबारा से जाके पूरे फिल्टर्स को मेरे को क्लियर करना पड़ेगा, या फिर उन 2 कॉलम्स में 3 कॉलम्स में जाना पड़ेगा, रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो एडवांस फिल्टर के लिए हम क्या करते हैं, छोटी सी रिक्वायरमेंट है, वो क्या करते हैं, पहले आपको प्रिपेयर करके रखना डेटा कि आपको जिस जिस कॉलम के बेसिस पे फिल्टर लगाना है, आप उस कॉलम को किसी साइड में, एक टेबल के साइड में रख लेंगे। आप उस फील्ड का नेम सेम होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट और हेड, इन दोनों का नाम सेम है। मैंने कहा कि यहाँ पे ये यूपी 1 मिलियन से सिर्फ ये 2 हेड एंड सी मुझे फिल्टर आउट करने हैं, फिर राजस्थान 1 मिलियन, अहमदाबाद महाराष्ट्र 0.1 मिलियन, एंड तमिलनाडु 0.1 to 1 मिलियन, और इनके से मुझे यही हेडेंस का डेटा चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल अपने करंट डेटा रीजन में आना है, और वहां पर आके आपको ये फिल्टर का जो ऑप्शन है इस पे एडवांस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडवांस पे क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एडवांस फिल्टर का। अब यहाँ पे बेसिकली ये ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे जब पहली बार ओपन करेंगे तो सिर्फ ऐसे आएगा, करंट डेटा रीजन को सिलेक्ट कर लेगा और फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, इस ऑप्शन को, बटन को चेंज करके हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पे कर देंगे। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज पूछा, क्राइटेरिया कहां पे दिया हुआ है, तो क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इंक्लूडिंग हेडिंग आप उस टेबल को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप कॉपी टू, कहां कॉपी करना चाहते हैं, राइट, वो आपको बताना है। मैं कहता हूं वहीं पे मुझे साइड में कहीं सी टेबल में कॉपी करना है, और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूं तो आप नोटिस करेंगे सिर्फ जो मार्केट्स यहाँ पे मेंशन थी और उनके अगेंस्ट में जो हेड एंड मेंशन थे, जहां पे वो रिकॉर्ड्स मेंशन हुए, राइट, सिर्फ उन्हीं मार्केट, उन्हीं हेडेंस का डेटा ही यहाँ पे पेस्ट हुआ है।